Hello, everybody. I'm Rudrani, and welcome to Filmfare OTT Awards 2025. She is such a brilliant actor who's been doing such power-packed performance for so many years. It's so wonderful to be meeting here, a place where we are celebrating the best of performances on OTT. Tell me why this is such a significant event, and how it has been such an equalizer for a lot of actors who are just here with their talent. I think for me, one, a filmfare is very, very special because ever since I was a child, I would daydream that the Filmfare Award goes to me. To come into movies, to celebrate movies and your peers and yourself within the fraternity, I think is an amazing joy. And to have introduced OTT, I think it's a great initiative that has happened. And I remember I won the first one. So yeah, it's very special to be here and celebrate the fraternity. Very well put. Ma'am, some of the favorite shows for you for this year, some breakout performances that you've noticed that you'd like to highlight? I would say there were lots of good things happening this year. For me, of course, it was my show Bandish Bandits. Then there was Family Man. Then there was Panchayat. Then there was Delhi Crime. Yes, and then I just saw something yesterday. I don't. It's not in the competition for sure, but I loved Single Papa. And I thought Kunal was really good. Sometimes you just don't expect something coming out of somewhere, but something brilliant just comes. So I think OTT is really delivering a lot of interesting stuff, and this competition I think is getting tougher day by day. As someone who's given such amazing performances and you've been, relevant through your work for so many years, what is an advice that you'd like to give to young actors who are coming into the industry are already there? It feels great that if not every year, then an alternate year I'm nominated. And I think the only mantra is to be hungry, to not feel you've had enough, because I think that feeling kind of takes away the whole excitement of wanting something. थैंक यू सो मच मैम मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड शिवा चड्डा है जो कि नॉमिनेटेड भी है कॉन्ग्रेचुलेशन मैम How are you feeling about the fact that being a part of an event which celebrates actors and their performances and truly gives an equal ground for everybody? माने नाना करते कि ओ व्हाट इज देयर इन अवार्ड्स एंड ऑल हम ऐसा बहुत बोलते हैं ना बट जब जीतो तो मज़ा बहुत आता है तो नॉमिनेशन नहीं यार 2 बार नॉमिनेटेड दैट्स बहुत ब्लेसिंग जस्ट टू बी एंड माय गॉड एंड इट इज़ ट्रू वी नॉट डोंट जस्ट से इट बट द काइंड ऑफ एक्टर्स वी आर नॉमिनेटेड विद यू थिंक के मतलब क्या ही चांस है ना इट्स लाइक दैट रियली ग्रेट पूल रियली वंडरफुल I'll ask you some quick questions, ma'am, before I let you go inside. Okay, a show that you've absolutely loved this year. पाताल लोक आई एम अ पाताल लोक फैन या 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 आई एम थिंकिंग और भी कुछ है मैं भूल जाती हूँ यार देख के ना या Okay, a character of yours that you completely relate to and love. a bit of a bit of 3 4 of them I don't know. A bit of the mother in Badai Do, a bit of the mother in Badai Ho. Both are so opposite. I'm a mixture of both. Yeah, why not? A bit of the trial. This lawyer I play in this series called Trial. A bit of Mohini in Bandish. Pretty much all. Okay, the weirdest audition that you had to give. I don't remember ऐसा कुछ नहीं. A very underrated actor who deserves more love in the OTT and film space. यार ऐसे ना ऑन द स्पॉट ना जैसी चीज़ें याद नहीं आती हैं. आई डोंट नो. There are so many actors, yeah, who are really good to. Like Kubra said, I mean, not that you can't say कि she's everywhere, but I think she's a very, very fine actor. Yeah, like why not more and more of Kubra? There are many actors like that, yeah, yeah, yeah. Fair enough. Fair. I'm not okay. Tell Not me. bad. It's not bad. You're getting very like maybe I have to give more better answers. I feel Not better answer. I just memory. I don't remember. I like it. बिल्कुल no 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 in the sense like some I know better. I'm just thinking I'm trying to remember because I know when I'm shooting then I think oh अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं. हाँ मतलब I can't remember when I'm asked like that yeah. um ma'am, what is a misconception about actors that you'd like to break today? That we are all big dramas. Uh,
we are to an extent, but then so is everybody else. And I think many a times when actors are acting up, वो थोड़ा समझना की ज़रूरत है, because it's the kind of job we do actually. I mean, I'd like to say, okay, what is it? It's like a job like anything else, but what we do really needs us to be quite naked, and that's not easy, yeah, in a room full of people. Yeah. I'd like to end by asking you, from your career and experiences, if there's one line advice that you'd like to give young actors entering this industry, what would that be? I don't know if it's a one-line advice, but it's like money is not for the faint-hearted. I would say, yeah, it's not for the faint-hearted. Yeah. थैंक यू सो मच मैम. मेरे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड छाया कदम, एंड आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर. आपको मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर जगह जब आप जाते हो, मतलब वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है ना. तो जैसे मैं कह रही थी, बहुत ही प्यारा मोमेंट था वो, है ना. और खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है. पर मैं बात करूँगी इस फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की. छाया जी, मुझे ये बताइए कि किस तरह से OTT अवार्ड्स जैसे फिल्म फेयर है, इन्होंने कितने सारे एक्टर्स को एक इक्वालिटी का एक जगह हो गया है कि आप टैलेंटेड हो, उसके बेसिस पे आपको चीज़ें मिल रही है. तो ये कितना एक इम्पॉर्टेंट बात है. बहुत इम्पोर्टेंट है. मैंने अभी भी किसी ने सवाल पूछा था, तो मुझे OTT इसलिए ज़्यादा दिल के करीब है, क्योंकि ना OTT की वजह से ऐसे बहुत एक्टर है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ना वो होता है ना, कई सालों से ना कुछ उनका और रोल का मेल जोल नहीं हो रहा था. लेकिन OTT की वजह से ना सबके ऐसे दरवाजे खुल गए, और है ना अभी उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं. इनको कास्टिंग डायरेक्टर उन तक पहुंच रहे, और सबको कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे. तो उनका एक अपना एक खासियत होता है ना एक्टिंग का. तो हम जैसे जिन्होंने काम किया है, लेकिन कभी कभी हमें भी लगता है कि यार मैं सेम कर रही हूँ क्या, या सेम देख रही हूँ क्या. उस वक्त ऐसे लोगों का काम देखते हैं ना, तो फिर ऐसे खुद को थोड़ा ऐसे लगता है कि यस यार, ऐसे करने को आना चाहिए या ये सीखना चाहिए. इसलिए मुझे OTT बहुत पसंद है. बिल्कुल सही बात कही आपने. तो चलिए कुछ मज़ेदार सवाल पूछते हैं आपसे. रेडी? आपका फेवरेट शो कौन सा था? बहुत सारे हैं, लेकिन फैमिली मैन, मनोज वाजपेयी. यस. और अभी मैं वापस सॉरी उनकी ही सीरीज़ अभी मैं देख रही हूँ, किलर सूप. महारानी भी थी जिसमें कनी है मेरी फ्रेंड, हुमा कुरैशी ने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत सब. अभी किसका नाम लो. यस. जया जी, एक ऐसे एक्टर OTT और फिल्म स्पेस में जो आपको बहुत अंडररेटेड लगते हैं, आपको लगता है कि उनको और सराहा देना चाहिए, उनको और सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे कौन से एक्टर हैं? बहुत सारे हैं. जैसे मैं अभी देख रही हूँ, वो उनका सॉरी मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन वो जो फैमिली मैन में उनके दोस्त दिखाए हैं, आई एम वेरी सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है. JK. यस. तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जैसे अभी जो लड़की गई मिया, उसने क्या काम किया है स्टोलन में यार. और मुझे अभी पता चला कि वो बहुत सालों से काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये इसकी पहली फिल्म थी. तो यस, ऐसे बहुत से एक्टर है. यस. ओके. ऐसे बहुत से एक्टर ऐसे भी है जो अभी तक आए नहीं है, टैलेंट से भरे हुए. यस. हाँ. एक ऐसा शो जो गिल्टी प्लेजर है, मतलब गिल्टी प्लेजर शो बोलते हैं ना, जो टाइम पास शो है आपके लिए. यानी सीरीज वगैरह. प्लेजर बोलते हैं ना उसे. एंटरटेनमेंट का वैल्यू कुछ अलग है. मैंने वो अपनी राजेश श्री की सीरीज देखी थी, रंगीन ही ना, है ना, करेक्ट है नाम. हाँ, वो मुझे बहुत मज़ा आया था देखने में. यस. सेट से कभी कोई चीज़ चुराई है, और वो क्या है? याद में होता है ना कि कैरेक्टर की. सेट से ना बहुत बार, बहुत पहले तो चुराती थी, बताती नहीं थी. अभी मैं बताती हूँ और चुराती हूँ. जैसे मुझे आदत है ना कि हर सेट पे शूटिंग के लास्ट दिन मैं कुछ तो उस कैरेक्टर की याद लेके जाती हूँ घर पे. फिर
कुछ भी हो वो, यानी कुछ इयररिंग्स हो या कुछ भी, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं चुरा के ले। लापता लेडीज से ना एक गले का कुछ हार चुराया नहीं था, उनको शायद पता चला कि ये चुरा के लेके जाएगी, उससे अच्छे पहले इसको दे दूँ तो यस यस बहुत ही। अब मुझे आपको ये पूछना है कि सबसे वियर्ड ऑडिशन कौन सा था? बड़ा अजीब सा अगर ऑडिशन कभी दिया, एक्टर्स को देना पड़ता है, सबसे अजीब ऑडिशन क्या था? वियर्ड ऑडिशन, सच बताऊँ मेरे लिए ना हर ऑडिशन, मैं बोलती हूँ ना कि यार मुझे ऑडिशन देना नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, मुझे ना थोड़ा टाइम जाता है कैरेक्टर समझने में, और या तो इसलिए मुझे हर वक्त ऐसे लगता है ऑडिशन के बाद यार मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ यार कुछ तो आप बताओ, करते हैं कुछ तो नया। ऐसे बहुत से ऑडिशन है, जैसे मैंने इसके लिए भी ऑडिशन दिया था, नवाज वाली वेब सीरीज़ कौन सी थी, सेक्रेट गेम्स। तो वियर्ड नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया था उस ऑडिशन को ना, क्योंकि कुछ ऑडिशन ना हमें बहुत सिखा के जाते हैं। जैसे शिवम था कास्टिंग डायरेक्टर ना, उसने ऑडिशन ली थी, तो हम लोग ने एक बार दो बार करके ना उसमें इतनी कुछ नई चीज़ें ढूंढ के निकाली थी। हाँ, बाद में उसका कुछ हुआ नहीं, यानी मैं फाइनलाइज हुई नहीं, लेकिन उस ऑडिशन की वजह मुझे बहुत सीखने को मिला। यस तो लास्ट तो यही सवाल होगा ऑफ कोर्स, आई थिंक शाहरुख के साथ स्टेज पे वो मोमेंट, उसके बारे में, और हम यूनिवर्स में ये देते हैं कि शाहरुख और आप एक दिन साथ में कुछ करें। लव यू यार, मैं भी वेट कर रही हूँ बहुत स्पेशल था, क्योंकि ना अभी आइफा का मैं यहाँ बताऊँ बोलूँ या नहीं, लेकिन शाहरुख खान, इसके पहले ना एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, और उस वक्त ना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है, तो मैं फुल तैयारी में थी कि अच्छा मुझे ना अभी मेरा नाम पुकारेंगे, फिर ये स्टेप चढ़ते चढ़ते मुझे जाना है वगैरह, और वही सोच रही थी। और फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड देने तभी भी शाहरुख जी आए, और मुझे ऐसे हुआ कि वाह यार शाहरुख के हाथ से मुझे अवार्ड मिलेगा, तो मैं फुल ऐसे तैयारी में थी, और किसी और एक्ट्रेस को मिला, तो मुझे ऐसे हुआ अरे यार, और इस वक्त मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, और फिर शाहरुख जी अचानक से आए, उन्होंने बातें की, गले मिलाया, चुम्मी ली सो यस, मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था, और स्पेशल, ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी था कि मेरे से ज़्यादा मेरे जो फैंस है, रिलेटिव्स हैं ना, वो बहुत खुश हो गए। सो थैंक यू सो मच छाया जी।